Hello students, very good afternoon to all of you. Myself Devesh Singh. Today in this video students, you are going to get the solution for this chapter. How beautiful is the rain? Yesterday we have read the explanation of this poem, and now today I am going to explain the exercise of this chapter. Okay students, now let's see the exercise of this chapter. In this chapter there are 4 exercises: exercise number A, exercise number B, C and D. In these 4 exercises you have to write the answer for each section. Now the first exercise is answer these questions. Answer these questions. Question number 1: how have the streets been described before the rain? How have the streets been described before the rain? रेन से पहले स्ट्रीट को कैसे डिस्क्राइब किया गया? यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स द आंसर. द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ डस्ट एंड हीट बिफोर द रेन. द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ डस्ट एंड हीट बिफोर द रेन्स. मीन्स जो रेन के पहले जो रोड की कंडीशन थी, काफ़ी सड़क बिल्कुल ब्रॉड दिख रहा था, काफ़ी फायरी हीट दिख रहा था और डस्ट से हीट से भरा हुआ दिख रहा था. ओके, नाउ द सेकेंड: फ्रॉम वेयर डज द रेन गस एंड स्ट्रगल आउट? फ्रॉम वेयर डज द रेन गस एंड स्ट्रगल आउट? कहाँ से जो रेन था वो गसिंग करते हुए, स्ट्रगलिंग करते हुए, कहाँ से रेन का जो स्ट्रीम था, जो पानी की स्ट्रीम थी, वो कहाँ से आउट हो रही थी? यू हैव टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स सी द आंसर इज हियर. द रेन गसेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पॉट. ओवरफ्लोइंग स्पॉट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रेन का ओवरफ्लोइंग को स्पॉट के माध्यम से, स्पॉट को आप टैप भी कर सकते हैं, टोटी जिसको बोलते हैं, जो जैसे कि टोटी पानी को क्रॉस करने के लिए, या फिर जो पतली स्ट्रीम्स निकली जाती हैं उसकी बात हो गई, ग्रुप्स की बात हो गई कि सब पानी की जगह इकट्ठा होकर जो एक पतले धार से निकलते हैं, उसी को यहाँ पर इस लाइन में मेंशन किया जा रहा है कि द रेन गसेस एंड struggles out from the throat of the overflowing spot. Okay, now let's see number 3. Why does the sick man bless the rain? जो sick man थे, जो बीमार लोग थे, वो क्यों रेन को ब्लेस कर रहे थे? तो you have read in the poem that the sick man, the old man, everyone was suffering so much due to the heat of the summer weather. So when the rain comes and everyone welcomes it, as there was twist in the weather, it was cool time, so this was a nice moment for them. So this answer is student here. The sick man blesses the rain. The sick man blesses the rain because their fevered brain grows calm again. Once again you see, the sick man blesses the rain because their fevered brain grows calm again. Okay, this was the answer for question number 3. Now let's see number 4. Why do the boys make more than their usual noise when it rains? What do they do? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बच्चे थे
वो अपने यूजुअल नॉइज जो उनका शोर करने की हैबिट होती उससे भी बढ़ कर के क्यों शोर कर रहे थे, क्यों और अधिक वो शोर कर रहे थे जब वर्षा हो रहा हुआ है, और फिर वो क्या कर रहे हैं उसके बाद से आकर के ये सारी चीज़ को यहाँ पे इस स्टेंजा नंबर 4 में जैसे कि लिखा हुआ यू कैन सी है, फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम्स द बॉयज विद मोर देन देयर वांटेड नॉइज एंड commotion, and down the wet streets sail their mimic fleets till the treacherous pool engulfs them in its whirling and turbulent ocean. So this is the passage, student, the last stanza of this poem, and from this poem you have to pick out the answer for this question. Okay, now the answer of this question is here. Let's see. The boys make more noise than their usual noise as they were so happy to see the wet street and treacherous pool, and they were sailing sailing, they were sailing their boat of imagination there. जो बच्चे थे वहाँ पे अपने यूजुअल नॉइज से भी, अपने हैबिचुअल नॉइज से भी और बढ़ कर के इसलिए शोर कर रहे थे क्योंकि बच्चे काफ़ी खुश थे, वेट स्ट्रीट को, बारिश को देखकर काफ़ी खुश थे। जो ट्रिचरस पूल वहाँ पे थे, छिछलेपन वाले जो पानी की जगह जगह जो भराव था उसको देखकर वे काफ़ी खुश थे, और वे अपने इमेजिनेटिव बोट्स को उसमें सेल करने लगे। उनको लग रहा था कि अगर इसमें मैं सेलिंग कर रहा हूँ, बोट्स को बनाकर इसमें फ्लोट करा रहा हूँ, ये सब काफ़ी इमेजिनेशन में बच्चे वहाँ पे कर रहे थे। सो दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी एट दैट टाइम, एंड एट दैट टाइम सो दे वर making the noise as the usual, more than their usual noise. Okay, so this was exercise number A. Now you see exercise number B. Mark the statements as true or false. Rewrite the incorrect sentence. The first है, the rains are welcome after the dust and heat of summer. In the first is true because after the dust and heat of summer the rains are welcome, so this is true. Now second number, the rains gently trickle down the gutter. So students, this is false because rains not gently but rains rapidly trickle down the gutters, so this is false. Now number C, the raindrops clatter on the rooftops like the stamping of cow hooves. Students, this is true because in the poem you have read that like the tramp of hooves, how it clatter along the roofs like the tramp of hooves. जैसे कि उस पर जो टीन सेट्स जो थे उस पर रेन ड्रॉप्स इस तरह से क्लैटर कर रहे थे, जैसे कि एनिमल्स के होप्स हो, उस पर एनिमल्स के होप्स चल रहे हों, इस तरह से आवाज़ कर रहे थे। तो दिस इज़ द ट्रू ऑप्शन हियर स्टूडेंट, ट्रू ऑप्शन हियर। और यहाँ पे जो स्टैंपिंग है इसको आप ठीक करके इसको ट्रैम्पलिंग कर देंगे, ठीक है ना, ट्रैम्पिंग। नाउ नंबर 4, the pools created by the rain engulfs the little boats floated by the school boy. तो यहाँ पे जो है इंगल्फ द लिटिल बोट्स को डायरेक्ट यहाँ पे शो किया, जबकि वहाँ पे बच्चे जो थे वो इमेजिनेटिव बोट्स को वहाँ पे चला रहे थे, इसलिए यहाँ पे फॉल्स होगा। और यहाँ पे आप डाल देंगे इंगल्फ द इमेजिनेटिव बोट्स, इमेजिनेटिव लिटिल बोट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह से योर सेंटेंस विल बी करेक्ट एंड दिस इज फॉल्स। Now your number C. Number C is find words from the poem which mean. Find words from the poem which mean. You see here, first is storm, second is nearby, third curling, four chaotic, five number deceptive. And for these words you have to write answers here. Now let's see, this is the answer for you. You see, for the first is dance and music. Dance and music, and you can also add here twisted. For second is close, for third is whirling, for fourth is disorderly, and for fifth is treacherous. Okay, treacherous here. Now you see the last exercise for this chapter.
Make sentences with these words. You may look up the dictionary if you are not sure of the meaning. Do not change the form of the words. मीन्स यहाँ जो वर्ड्स लिखे हैं इन वर्ड्स का आपको यहाँ पे मीनिंग करना है स्टूडेंट्स, मीनिंग करना है, ठीक है ना। मीनिंग लिख करके आपको सेंटेंस मेक करना है। देखिए जो फर्स्ट है गटर, गटर का मीनिंग क्या होगा? अ ड्रेनेज सिस्टम, अ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ वाटर, a drainage system of water. You can write that in the rainy season the gutters seemed like the river, the gutters water flowing like a river. तो गटर यहाँ पे आ गए, इस तरह से आप सेंटेंस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नंबर 2 जो है फेवर्ड, फेवर्ड यहाँ पे फेवर्ड की मीनिंग आप लिख देंगे एजिटेटेड, एजिटेटेड या फेवरिस। यहाँ पे देखिए उन्हें मीनिंग को यहाँ पे डाला हुआ है, फेवरिस और एजिटेटेड, फेवरिस और एजिटेटेड आप यहाँ पे डाल देंगे तो फेवर्ड का मीनिंग लिख देंगे यहाँ पर। द सिक मैन वर लुकिंग वेरी फेवर्ड ड्यू टू वेरी हॉट वेदर, ओके, ड्यू टू वेरी हॉट वेदर। नंबर 3 वांटेड, वांटेड मीन्स यहाँ पे WO है, WA वाला नहीं है, वांटेड है। वांटेड मीन्स हैबिचुअल या यूजुअल, habitual या usual. In the classroom the children were making wanted noise, okay, wanted noise यानी usual noise, जो जैसे करते हैं वैसे ही शोर कर रहे हैं, usual noise, इसलिए यहाँ पे हो गया wanted, wanted. Now number 4 you see here, number 4 mimic, mimic, mimic मीन्स होता है इमिटेशन, इमिटेशन होता है स्टूडेंट्स, इमिटेशन। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, तो टू लिख सकते हैं आप यहाँ पे सेंटेंस सीइंग द हैवी रेन द चिल्ड्रेन वर सेलिंग देयर मिमिक बोट्स, द चिल्ड्रेन वर सेलिंग देयर मिमिक बोट्स, ओके। नंबर 5 है इंगल्फ्स, इंगल्फ्स मीन्स साइलो जब होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं इन द हाउस द चिल्ड्रेन हैव engulfed the smoke as the house caught fire, as the house caught fire। जैसे घर में आग लगी, बच्चों ने कुछ स्मोक को इंगल्फ कर लिया था, ओके। नेक्स्ट नंबर 6 है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मीन्स होता है उपद्रवी, उपद्रवी होता है टर्बुलेंट में। आप डिस्टर्ब्ड यहाँ लिख देंगे, डिस्टर्ब्ड इसका मीनिंग होता है डिस्टर्ब्ड। देवर दोज विलेजर्स आर लुकिंग वेरी टर्बुलेंट, और देयर एक्टिविटीज आर लुकिंग वेरी टर्बुलेंट, और द ओशियंस वेव्स आर वेरी टर्बुलेंट, ठीक है ना, या स्ट्रीम्स ऑफ द रिवर इज़ वेरी टर्बुलेंट। ऐसे लिखकर स्टूडेंट्स आप सेंटेंस को कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका चैप्टर का सलूशन क्लियर हुआ। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय एवरीवन।